तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। Students, I am taking all these contents of this chapter from the Punjab textbook board. Today we are going to study the unit number 7, Sultan Ahmad Masjid. First of all, we are going to discuss about the summary or a brief introduction about the chapter. The Sultan Ahmad Masjid, known as the Blue Masjid, is situated in Turkey. The Sultan of Turkey started its construction in 1609, but unfortunately he did not live to see its completion. The construction of the masjid was completed in 1616 during the reign of Mustafa I. The architectural features of the masjid are very impressive and attractive, so the masjid even today is considered unmatched in splendor, majesty and size. The masjid has a very vast forecourt. The Blue Masjid has 6 tall minars. The interior of the masjid is decorated with handmade ceramic tiles and different designs. There are more than 200 stained glass windows with intricate design on them. The most appealing feature of the masjid is that the masjid is so designed that even when it is most crowded, everyone in the masjid can hear and see the imam. The Blue Masjid is a great attraction for tourists all over the world. They come from far off countries to see its splendor and majesty and offer their prayers in it. The theme of this unit is to highlight the significance of the Islamic architecture. The world of Islam has a splendid heritage of art and architecture in which they excelled throughout the history. Masajid has always been the prominent feature of the Islamic architecture. The essay not only highlights the glory of the Sultan Masjid but also throws light on the skill and ability of the architects of the time. So students, this was a brief introduction about the Sultan Ahmad Masjid. Now move on to the translation of the chapter. First paragraph. The Sultan Ahmad Masjid is one of the most impressive monuments in the world. It is also known as the Blue Masjid because of the blue tiles that embellish its interior. Situated in Istanbul, the largest city in Turkey and the capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923, it has become the most popular tourist attraction. सुल्तान अहमद मस्जिद दुनिया की इंतहाई मुतासिर कुन तारीख़ी यादगारों में से एक है। ये उन नीली टाइलों की वजह से जो इसके अंदरूनी हिस्से को मुज़य्यन करती हैं नीली मस्जिद यानी कि ब्लू मॉस्क के नाम से भी मशहूर है। इस्तांबुल जो कि तुर्की का सबसे बड़ा शहर है 1453 से लेकर 1923 तक सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत रहा। इसमें ये वाक़ है। ये सियाहों की इंतहाई मकबूल तवज्जो का मरकज़ बन गई है। It was constructed between 1609 and 1616 during the rule of Ahmad I. As was the custom, this masjid, like the other masajids of the time, comprises a tomb of the founder, a madrasa and a hospice. ये अहमद के दौर हुकूमत के दौरान 1609 और 1616 के दरमियान तामीर हुई।
जैसा कि रिवाज था कि ये मस्जिद दौर की दीगर मसाजिद की तरह उसके बानी के मकबरे, मदरसे और हस्पताल पर मुश्तमिल है। So students, there is a question in the box, who started the construction of the Blue Masjid? And the answer is Sultan Ahmad started the construction of Blue Masjid in 1606. सुल्तान अहमद ने ब्लू मस्जिद यानी कि जिसको हम नीली मस्जिद कहते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ किया 1606 में। Now we move on to the difficult words, their pronunciation, meanings and synonyms about the paragraph number 1 and 2. First one is monument. Monument means तारीखी यादगार, memorial. Embellish, आरास्ता करना, decorate. Interior, अंदरूनी, inside. Tourist, सयाह means traveler. Tomb, मकबरा means shrine. Founder, बानी means owner और ऑपरेटर, किसी चीज़ को बनाने वाला या उसका मालिक। हॉस्पाइस, छोटा हस्पताल या फिर स्पेशल हॉस्पिटल कहते हैं जो मसाजिद के अंदर ख़ास तौर पर बनाए जाते हैं, ये रवायत के मुताबिक। स्टूडेंट्स, देयर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड देयर सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज़ मॉन्यूमेंट, देयर इज़ अ मैसिव मॉन्यूमेंट इन द स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज़ एम्बेलिश, अर्बन डिड मच टू एम्बेलिश द सिटी। इंटीरियर, the interior of mosque was dark. Tourist, I am not a tourist. Students, आपने जितने भी ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग्स और सिनोनिम दे गए हैं, बट आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है। प्रोनाउंसिएशन से आपने फ़ायदा उठाना है यहाँ पर जो लिखी हुई है, ताकि कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड हो आपने उसको पढ़ने में आपको मुश्किल ना आए। और जितने भी यहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं आपने उनके स्पेलिंग्स को याद करना है अच्छे तरीके से, जितने भी स्पेलिंग्स हैं, ताकि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो सके। और यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस मैंने बना दिए इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स में से, बाकी आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है अपने होमवर्क में। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद स्टार्टेड इन 1609. द रॉयल आर्किटेक्ट सदफ़हार महमद आगा was appointed by the Sultan as in charge of the project. मस्जिद की तामीर 1609 में शुरू हुई। शाही माहिर तामीरात जिसका नाम सदफ़हार महमद आगा था, उसको सुल्तान की तरफ से तामीर के इंचार्ज की हैसियत से मुकर्रर किया गया। द ओपनिंग सेरेमनी वाज हेल्ड इन 1616. Unfortunately, the Sultan could not see the completion of the masjid in his life. 1616 में इफ्तिताही तकरीब का इनकाद हुआ मस्जिद की। बदकिस्मती से सुल्तान अपनी ज़िंदगी में मस्जिद की तकमील ना देख सका। It was completed in the reign of his successor मुस्तफ़ा वन. ये उनके जानशीन मुस्तफ़ा अव्वल के दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुई। There is a question in the box. In whose reign was the construction of the blue masjid completed? किसके दौरे हुकूमत में ब्लू मस्जिद जो थी वो कंप्लीट हुई? So the answer is the construction of the masjid was completed in the reign of मुस्तफ़ा वन. मुस्तफ़ा वन जो था उसके दौरे हुकूमत के अंदर ये मस्जिद जो थी कंप्लीट हुई। There are some difficult words, their pronunciation, meanings and synonyms related to the paragraph number 3. First one is construction. Construction. Meaning है इसका तामीर and the synonym is building. Architect means माहिर तामीरात जो कि किसी चीज़ को बनाने में माहिर हो, means designer. Project मंसूबा planning. Ceremony रसूमात formalities. Reign दौरे हुकूमत रूलिंग और गवर्न. Successor जानशीन. Next in line यानी कि एक नस्ल के बाद अगली नस्ल जब दौरे हुकूमत में आ जाए तो उसको सक्सेसर कह सकते हैं हम। अपॉइंट मुकर्रर करना, नॉमिनेट। देयर आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन, अ डैम इज अंडर कंस्ट्रक्शन। आर्किटेक्ट, अली इज अ ग्रेट आर्किटेक्ट। प्रोजेक्ट, वी बिगेन वर्क ऑन द प्रोजेक्ट इन मे। स्टूडेंट्स, ये जितने भी आपने कुछ सेंटेंसेस मैंने वर्ड्स के बना दिए हैं, बाकी जो भी वर्ड्स रह गए हैं बेटा आपने इनकी अपने होमवर्क में प्रैक्टिस करनी है और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इनको अच्छे तरीके से याद करना है। नाउ वी मूव ऑन टू द पैराग्राफ नंबर 4. द ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बोथ द ऑटोमन मस्जिद एंड बेजेंटाइन चर्च.
Aya Sophia, a masjid, one of the wonders of the Muslim architecture, was also kept in view as a model. नीली मस्जिद यानी कि ब्लू मॉस्क जो है वो दोनों यानी कि उस्मानवी मस्जिद और बेजेंटाइन चर्च के फ़न की तामीर की तस्वीर कशी करती थी। मेरा बेजेंटाइन उस वक्त उस्मानिया से पहले जो अम्पायर थी वो बेजेंटाइन अम्पायर थी, जो कि आप कह सकते हैं क्रिश्चियंस की थी, ठीक है। तो उनके चर्च के फ़न की तामीर की तस्वीर कशी भी करती थी। आया सोफिया नाम की एक मस्जिद जो मुसलमान फ़न तामीर के अजायब में से एक थी, उसे भी एक नमूने की हैसियत दी गई। The Blue Masjid, even today, is considered to be unmatched in splendor, majesty and size. नीली मस्जिद को आज भी उसके जाओ जलाल, वकार और जिसामत के अतबार से लासानी समझा जाता है, यानी कि उसका कोई दूसरा मुकाबला नहीं कर सकता। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 5. द मस्जिद हैज़ अ स्पेशियस forecast surrounded by a continuous vaulted arcade. It has ablution facilities on both the side. In the center there is a fountain which is rather small in contrast with the magnitude of the courtyard. मस्जिद के सामने एक वसीओ अरीज सहन है जो एक लगातार मेहराबदार रास्ते से घिरा हुआ है। इसके दोनों सिमत में वज़ू की सहूलियात हैं। एब्ल्यूशन मीन वज़ू। वस्त में या दरमियान में एक फवारा है जो सहन की वसत के लिहाज से कदरे छोटा है। A heavy iron chain is hung at the upper part of the court entrance. मगरबी सिमत में सहन के दरवाजे के बालाई हिस्से में एक लोहे की भारी जंजीर लटकी हुई है। There is a question in the box. For what purpose does a heavy iron chain hang there? क्या मकसद है उस भारी चेन के लटकने का? Its purpose is that anybody passing through the entrance should make signs of humility in the face of God by bowing his head. उस चेन का मकसद ये है कि कोई भी जो इस दरवाजे से गुजरे वो अपना सर झुकाकर खुदा के सामने आजिज़ी का इजहार करे। Now there are some difficult words, pronunciation, meanings and synonyms related to the paragraph number 4 or 5. First one is wonder. Wonders mean ajube, admiration. Model, namuna, representation. Splendor, शान शौकत और इसका सिनोनिम आ सकता है लग्जरी। Majesty, वकार means dignity. Spacious, खुला, रूमी. Arcade, मेहराब जिसको हम गैलरी भी कहते हैं। मैग्नीट्यूड, जिसामत मीन्स साइज या फिर उसकी वास्टनेस। देयर आर सम सेंटेंसेस रिलेटेड टू द प्रीवियस डिफिकल्ट वर्ड्स। फर्स्ट वन इज वंडर्स. ही डिस्कवर्ड द वंडर्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट. मॉडल, ही बॉट वन ऑफ द ओल्ड 1965 मॉडल्स. स्प्लेंडर, दे ड्रेस्ड आउट इन देयर स्प्लेंडर। स्टूडेंट्स, ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने यहाँ पर उनके सेंटेंसेस बना दिए हैं। बाकी जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है अपने होमवर्क के तौर पर, और उनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के स्पेलिंग्स भी अच्छे तरीके से याद करने हैं। दिस साइड वॉज मीन्ड फॉर द सुल्तान अलोन. द चेन वॉज पुट देयर सो डैट द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड एवरी टाइम ही एंटर्ड द कोर्ट. इट वॉज द सिम्बॉलिक जेस्चर to ensure the humility of the ruler in the face of divine power. ये जगह सिर्फ सुल्तान के गुजरने के लिए थी। जंजीर वहाँ डाली गई थी ताकि सुल्तान हर मर्तबा जब भी शहर में दाखिल हो उसे अपना सर झुकाना पड़े। यह खुदा के सामने किसी भी हुक्मरान की आजिज़ी की यकीन दहानी कराने के लिए एक अलामती इशारा था। यानी कि सुल्तान ने वहाँ दरमियान में सिर्फ अपने गुजरने वाली जगह के ऊपर एक जंजीर लटकवा दी थी कि जब भी सुल्तान वहाँ से गुजरे तो मस्जिद में दाखिल होते वक्त वो अपना सर झुका ले ताकि एक आजिज़ी का यकीन दिलाया जा सके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने। Next paragraph, the interior of the masjid at the lower level is lined with more than 20,000 hand-made ceramic tiles in more than 50 different tulip designs. At the gallery level, the design becomes flamboyant with representation of flowers, fruity and cypress.
निचली सतह तक मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा 20,000 से ज़ायद हाथ से बनी हुई पुख्ता मिट्टी की टाइलों से ढका हुआ है, जो 50 से ज़ायद गुले लाला मीन्स ट्यूलिप के मुख्तलिफ नकूश से मुज़य्यन है। गैलरी की सतह पर डिज़ाइन फूलों, फलों और सरों यानी सनोबर के पौधों की नुमाइश के साथ पुरकशिश हो जाता है। यानी कि उसका जो अंदर का जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है कि उसको 20,000 के करीब जो है हाथ से बनी हुई जो सिरामिक्स की टाइलें हैं उनसे लगाया गया है, और उन टाइलों के ऊपर हाथ से बने हुए डिज़ाइंस हैं जो कि ट्यूलिप फ्लावर के हैं। और जो गैलरी है वहाँ पर बहुत से फलों, फूलों और सनोबर के पौधों की नुमाइश की गई है। There are some difficult words, their pronunciations, meaning and synonyms related to the paragraph number 5 and 6. First one is gesture. इसको हम gesture पढ़ेंगे, gesture नहीं पढ़ेंगे, ये जीम की आवाज़ दे रहे हैं। इशारा means signal. Humility आजजी means modesty. Divine खुदाई यानी godly, खुदा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये कुदरत के लिए। सिरामिक टाइल्स मीन्स पुख्ता मिट्टी की टाइलें, इसको हम पॉटरी भी कह सकते हैं, पॉट यानी कि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको पॉटरी कहते हैं। फ्लैम्बॉयंट काबिल ज़िक्र यानी कि पुरकशिश मीन्स कॉन्फिडेंट एंड वाइब्रेंट। साइप्रस सरो या फिर स्नोबर के जो पौधे होते हैं या फल होते हैं उनके लिए। एवरग्रीन ट्री। डिज़ाइंस नमूने मीन्स प्लान और पैटर्न। Students, there are some difficult words and their sentences. First one is gesture. She made an expansive gesture with arms. Humility. We must all have humility. हम सबको आजिज़ी दिखानी चाहिए। Divine. They saw the floods as a sign of divine. यानी कि जो सैलाब वगैरह आते हैं कि वो समझते हैं कि ये कुदरत की तरह एक कुदरत की अलामत है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं बेटा आपने कुछ बना दिए गए हैं, बाकी जितने भी हैं आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है खुद से। कोशिश करें इजी वर्डिंग में हो सारे सेंटेंसेस ताकि आपको बनाने में आसानी हो आपकी। इससे होगा क्या कि आपकी इससे राइटिंग स्किल्स बढ़ जाएंगी। सेल्फ राइटिंग पार्ट जो होती है जो 9th-10th के स्टूडेंट को ज़रूरी होती है, इस इन क्लासेस के अंदर कहा जाता है कि अपनी राइटिंग स्किल्स को बढ़ाएं। तो स्टूडेंट जब तक आपकी वोकेबलरी नहीं अच्छी होगी बेटा, जब तक आप सिनोनिम्स को याद नहीं करेंगे, आप अपनी सेंटेंसेस को नहीं बनाएंगे, आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्पार नहीं करेंगे, तब तक आपकी इंग्लिश जो है वो आप राइटिंग स्किल्स नहीं कर सकते, आप खुद से कोई चीज़ नहीं लिख सकते। तो उसके लिए बेहतर है कि आप जितने भी हम ग्रामर करते हैं, जितने भी हम प्रैक्टिस वगैरह करते हैं उनको अच्छे तरीके से किया करें। ये आपका होमवर्क है। नाउ मूव ऑन टू द पैराग्राफ नंबर 7. The upper level of the interior is adorned with blue paint. More than 200 stained glass windows with intricate design allow natural light to brighten up its interior, and the chandeliers further illuminate it with their glow. अंदरूनी हिस्से की बालाई सतह नीले रंग से मुज़य्यन है। कुदरती रोशनी 200 से ज़ायद रंगीन शीशे की खिड़कियों जो कि पेचीदा नगूशो निगार से आरास्ता हैं उनमें से गुजर कर उसके अंदरूनी हिस्से को मुनव्वर करती है, और फानूस अपनी मध्यम रोशनी से उसे मज़ीद रोशन करते हैं। द डेकोरेशन इंक्लूड्स आयात फ्रॉम द होली कुरान. द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स. सजावटी अशिया में कुरान पाक की आयात शामिल हैं, फर्श कालीनों से ढके हुए हैं। पैराग्राफ नंबर 8. द most important elements in the interior of the masjid is the mihrab, which is made of finely carved marble. मस्जिद के अंदर इंतहाई अहम चीज़ वो मेहराब है जो नफासत से नक्शो निगार किए हुए संगे मरमर से बना हुआ है। To the right of the mihrab is a richly decorated pulpit. The masjid is so designed that even when it is most crowded, everyone in the masjid can listen to and look at the imam. मस्जिद का नक्शा मेहराब के दाएं जानिब बहुत ज़्यादा मुज़य्यन मिंबर है, पल्पिट मीन मिंबर। मस्जिद का नक्शा इस तरह से बनाया गया है कि जब भी ये पुरहजूम भी हो तो मस्जिद में मौजूद हर कोई शख्स इमाम को सुन सके और देख सके।
So students, there are some difficult words, their pronunciation, meanings and synonyms related to the paragraph number 8 and 9. Sorry, 7 and 8. First one is adorn. Adorn का मतलब होता है बेटा सजाना, डेकोरेट करना. Intricate. Intricate मतलब पेचीदा, complicated और complex. Chandeliers means फानूस. डेकोरेटिव लाइट्स, वो जो ऊपर से दीवार के साथ लटका दिए जाते हैं और काफ़ी भारी भरकम होते हैं, लाइटें उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, उसको हम शैंडलियर्स कहते हैं. मीन्स वो फानूस होते हैं. इल्यूमिनेट रोशन करना, लाइट अप. कार्व्ड. कार्व्ड मीन नक्शो निगार. इंग्रेव्ड. पल्पिट मिंबर. प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह जहाँ पर इमाम ने बैठकर, मस्जिद के इमाम ने बैठकर खुतबा देना होता है, वो उसका मिंबर होता है. और वो मिंबर जो होता है वो महराब पर मौजूद होता है. क्राउडेड, पुरहजूम, फुल ऑफ पीपल. देयर आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर सेंटेंसेस. फर्स्ट वन इज adorn. Adorn, she likes to adorn herself with jewels. Intricate, I have a novel with an intricate plot. Chandeliers, the crystal chandeliers sparkled. स्टूडेंट्स, जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ पर बनाए गए हैं, आपने उन सब की प्रैक्टिस करनी है, उनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है, उनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स याद करने हैं, सिनोनिम्स याद करने हैं और उनके स्पेलिंग्स भी याद करने हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 9. द रॉयल रूम इज सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर. It has its own pulpit that used to be decorated with jade and roses. शाही कमरा जनूब मगरिब कोने में वाक़ है. उसका अपना मिंबर है जो कभी सब्ज़ पत्थर और गुलाब से आरास्ता हुआ करता था. जेड मीन सब्ज़ पत्थर. पैराग्राफ नंबर 10. द ब्लू मस्जिद हैज़ 6 मीनार्स. 4 मीनार्स स्टैंड वन ईच एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द मस्जिद. नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं. 4 मीनार मस्जिद के चारों कोनों पर कायम हैं. Each of these pencil-shaped minars has 3 balconies, while the other 2 at the end of the forecourt have only 2 balconies. इन पेंसिल की शक्ल के मीनारों में से हर एक में 3 बालकनियां हैं, जबकि दूसरे सामने वाले सहन के इख्तिताम पर मौजूद है जहां पर सिर्फ 2 बालकनी हैं. बालकनी मीन गैलरी कह सकते हैं हम उनको. नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 11. इन द इवनिंग a large number of tourists and Turks gather in the park facing the masjid to listen the call to the evening namaz. The masjid is flooded with lights and so are the hearts of the believers with divine love. शाम के वक्त बड़ी तादाद में सयाह और तुर्क इस पार्क में इकट्ठे होते हैं जिसका रुख मस्जिद की तरफ है ताकि वो मगरिब की अजान सुन सकें. मस्जिद रोशनियों से जगमगा उठती है और इसी तरह से ईमान वालों के दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज हो जाते हैं. डिवाइन मैंने आपको बताया था कुदरत यानी कि अल्लाह से रिलेटेड वर्ड है. दो मच हैज़ बीन लॉस्ट ऑफ द ब्लू मस्जिद ओवर द ईयर्स yet it has not lost the love of its visitor. The masjid is still one of the most visited monuments of the world. ये मस्जिद अब भी अगरचे इन सालों के दौरान यानी कि जब से वो बनी है उन सालों से लेकर अब तक उन सालों के दौरान नीली मस्जिद का काफ़ी कुछ ज़ाया हो चुका है, मगर फिर भी ये अपने सयाहों की मोहब्बत से महरूम नहीं हुई. ये मस्जिद अब भी दुनिया की सबसे ज़्यादा सियाहत की जाने वाली तारीख़ी यादगारों में से एक है. देयर इज़ अ क्वेश्चन इन द बॉक्स, वेयर इज़ द रॉयल रूम सिचुएटेड. जो शाही कमरा है वो कहाँ पर मौजूद है. द रॉयल रूम इज़ सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द ब्लू मस्जिद. जो शाही कमरा है वो जनूब मगरिब के कोने में वाक़ है. देयर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स, देयर प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स रिलेटेड टू द पैराग्राफ नंबर 9, 10 and 11. First one is jade. Jade means सब्ज़ पत्थर, green stone. Forecourt, सामने वाला सहन. Front, open area. Frequented, तेज़ी से ज़्यादा या अक्सर. Continual, monuments, यादगारें, memorial. Flooded, भरपूर रोशन, full bright. Tourists, सयाह means travelers, जो दूसरे मुल्कों से जाएं किसी जगह पर या एक जगह से दूसरी जगह घूमने फिरने के इरादे से जाएं वो टूरिस्ट होते हैं. सिचुएटेड,
वाक़े होना, locate. Students, there are some difficult words and their sentences. First one is jade. Jade is a precious stone. Forecourt. He drive to the forecourt. Frequented. The most careless frequented the temples. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस चैप्टर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बेटा आपने जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अपनी वोकैबुलरी इन्हांस करने के लिए सिनोनिम्स को याद करना है, उनके स्पेलिंग्स को याद करना है, उनको अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है ताकि आपकी सेल्फ राइटिंग पार्ट जो है वो इन्हांस हो सके और इस चैप्टर को अच्छे तरीके से आपने देखना है। बच्चों, आपके लिए हर मज़मून की वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। शुक्रिया।